Dear friends, we have done 3 classes on journal entry, and we will also, I am going to start the 4th class on that particular subject, and you might be knowing that this particular subject is a game changer in accountancy, and all of we know that modern concept of accounting, the modern process of accounting, including all the softwares that are available on accounts, most of them depends on the concept of journal entry based on the dual aspect concept. So we are going to do another one class, and more classes will also be there on journal entry itself. If you like my video and if you think that it is useful for any beginners who are starting accountancy as a career, then you subscribe it, and don't forget to give a comments, because your comments may be in any way will be highly appreciated by me. Thanking you. That is 1/2/2020. Mr. X started business with machinery rupees 25,000, furniture 20,000, stock 10,000, bank overdraft OD 5,000, debtor 13,000, creditors 11,000. You see, Mr. X has started business with certain assets and liabilities. ये तो आपको पता है कि मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, these are all real account, and bank overdraft is a personal account. It is like a loan. Bank overdraft means you have taken more money from the bank than whatever is left in the bank. So bank has given you certain loan. It is generally the bank overdraft and cash credit. ये दोनों टाइप का लोन इज नियरली शॉर्ट टर्म होता है, 1 year period, but it is a loan. And debtor is your personal account, is a asset. Creditor is a personal account and it is a liability. They are suppliers and they are also your purchasers, right? So debtors are your customer and creditors are your suppliers. So let us do it. Machinery account debit. Machinery account debit 25,000. Furniture account debit 20,000. Stock account debit 10,000. Debtor account debit 13,000. To bank OD overdraft 5,000. To creditor 11,000. You see, machinery debit 25,000, furniture debit 20,000, stock debit 10,000,
and debtor debit 13,000, bank overdraft 5,000 and creditor is 11,000. And as you know, these are all assets I have discussed in earlier class. These are all liabilities. So capital will be the balancing figure. Capital account, this will be balancing figure. Just I am writing here. Don't write in your exam paper. Asset minus liability is your capital. This is your 52,000 is the capital. Being the assets and liabilities, being the assets and liabilities recorded. So this is the entry we have done. Let us come to another one entry 15/2/2020. Okay. One of the debtor from whom rupees 5,000 receivable become insolvent and $60 in a rupee each receivable from him. वन ऑफ द डेटर, ये जो डेटर आपका 13,000 है उसमें एक डेटर आपका 5,000 उससे मिलना है, वो बोलता है कि इंसॉल्वेंट हो गया. इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया and he is unable to pay the debt. Insolvent is a person who is unable to pay the debt. वो डेट दे नहीं पाएगा इसलिए इंसॉल्वेंट. And court has declared him as an insolvent. Insolvent actually declared by the court. So और देखता है कि ये जितना पैसा है 60 पैसा दे पाएगा और 40 पैसा अनेबल टू पे, जो दे नहीं पाएगा 60 पैसा रिसीवेबल फ्रॉम हिम. दैट मीन्स 60 पैसा मेरे को मिलेगा बट 40 पैसा नहीं मिलेगा. जो नहीं मिलेगा दिस इज योर बैड डेट. जो नहीं मिलेगा दिस इज योर बैड डेट. सो बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 into 60%. 60 पैसा 60% हो सकता है. We should write cash, that is 3,000. Bad debt आपका bad debt account debit 5,000 into 40%, 2,000 to
debtor account, to debtor account 5,000, being the amount received from रिसीवेबल मत लिखिए, रिसीव्ड कर दीजिए, सेटल हो जाएगा, रिसीव्ड फ्रॉम है, being the amount received from debtor। देखो कितना 5,000 उससे रिसीवेबल, और वो दे पाता है 60%, दैट इज 3,000, और जितना नहीं मिलेगा वो बैड डेप्ट होता है आपका 2,000, और टू डेटर अकाउंट इज योर 5,000। ओके, सो यू अंडरस्टैंड दिस, डेटर इज ए गिवर, सो डेटर पैसा देता है इसलिए वो मेरा क्रेडिट हो जाता है, कैश डेबिट होता है, और बैड डेप्ट मेरा लॉस होता है। दिस इज ए नॉमिनल अकाउंट, बैड डेप्ट इज ए नॉमिनल अकाउंट, इट इज ए लॉस, therefore it is all debited, and cash is a real account that debit what comes in, कैश आता है मेरा पास इसलिए मैं कैश को डेबिट करते हैं, और डेटर इज ए गिवर, दिस इज ए पर्सनल अकाउंट, एंड क्रेडिट द गिवर, जो गिवर होता है डेटर, सो डेटर अकाउंट इज क्रेडिटेड, राइट। आप देखिए दूसरा एंट्री, now 10/2/2020 provide depreciation on machinery 15% and furniture 15% per annum, furniture 10% per annum for the year, right? year बोला है इसलिए सारा साल के लिए मैं डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और मेरा मशीनरी कितना ना 15% पर एनम, 25,000 का 15% जितना वही मेरा डेप्रिसिएशन होगा, और फर्नीचर 10%। अरे भाई डेप्रिसिएशन क्या है ना, जब कोई एसेट को मैं यूज करते हैं वो एसेट का यूज का हिसाब से उसका लाइफ कम हो जाता है। मान लीजिए सपोज से आई परचेस ए फर्नीचर, ए चेयर, भाई चेयर का लाइफ तो एक लिमिटेड है ना, मे बी 5 years और 10 years एज द केस मे बी। सो हम लोग जब यूज करते हैं बिजनेस के लिए तो वो बिजनेस को आपको सर्विस देता है, उसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंडिचर। फिर डेप्रिसिएशन क्यों देते हैं, माने कोई टेक्नोलॉजी ऑब्सोलिसेंस हो गया, आगे जिस तरफ था आपका पेजर था, जब मोबाइल आ गया ये पेजर जितना भी अच्छा क्वालिटी था सब ऑब्सोलेट, कोई लाभ नहीं है। सो टेक्नोलॉजी हिसाब से भी डेप्रिसिएशन हो जाता है। उसी तरह डेप्रिसिएशन जब आप लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कितना उपाय में डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, टाइम के लिए हो सकता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है, और प्रोडक्शन हिसाब से डेप्रिसिएशन होता है। तो इसी हिसाब से काफी डेप्रिसिएशन का मेथड होता है। सो डेप्रिसिएशन वी प्रोवाइड बिकॉज हम लोग एसेट को यूज करते हैं, जब यूज करते हैं तब डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंडिचर। सो लेट अस कम टू दैट वन, दैट इज मेरा मशीनरी कितना था 25,000, मैं डेप्रिसिएशन देंगे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना 25,000 25,000 into 15%
आपका आता है 3750, राइट। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट आपका 20,000 इंटू 10% 2,000। सो देखिए, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 3750, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, मशीनरी 25,000 और फर्नीचर 20,000, उसका 2,002। देखो, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, सो मशीनरी कम हो जाएगा, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। डेप्रिसिएशन इज ए नॉमिनल अकाउंट, मशीनरी इज ए रियल अकाउंट। जितना दिन आप यूज करते हैं मशीनरी का वैल्यू कम हो जाता है, इसलिए मशीनरी गोज आउट। जब यूज करते हैं मशीनरी का वैल्यू कम हो जाता है, इसलिए मशीनरी गोज आउट, रियल अकाउंट। चलो, फर्नीचर गोज आउट टू मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट 3750 टू फर्नीचर अकाउंट आपका 2000, being the depreciation provided on machinery and furniture, being depreciation provided, आप लोग लिख सकते हैं being depreciation provided on machinery and furniture, और एक बार बोल देते हैं being depreciation provided on machinery and furniture। देखिए, ये एंट्री, ये दो हो गया। आप उसको बाइफरकेट करके आप एक एक भी कर सकते हैं। क्या करना चाहिए ना, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी डेबिट 3750 टू मशीनरी अकाउंट 3750, ये एक नंबर एंट्री। 2 नंबर क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये भी आप कर सकते हैं। तब दोनों एंट्री हो जाएगा। ये में कंबाइन करके एक एंट्री कर दिए, आप उसको भाग कर देने से 2 एंट्री भी हो सकता है। दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये एक एंट्री। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये एक डेबिट, राइट। A supplier to whom rupees 6,000 payable waive his claim by rupees 500 and paid immediately. A supplier to whom 6,000 paid, सप्लायर को 6,000 रुपया पेमेंट करना है। कोई एक सप्लायर, मान लीजिए कि कोई एक सप्लायर वेव इज क्लेम छोड़ देता है, आपको बोलता है कि वेव इज क्लेम बाय 500, 500 रुपया आपको छोड़ देता है। क्यों ना, आप उसका पैसा इमीडिएटली पे कर देंगे। मान लीजिए कि मिस्टर वाई इज ए सप्लायर और मेरे को वाई को 6,000 रुपया देना है। अगर 500 रुपीज वो बोलता है कि तुम आज को पैसा दे दे, मैं तुमको 500 रुपया छोड़ देंगे,
ये तो डिस्काउंट रिसीव, ये मेरा इनकम, क्योंकि मेरे को कोई छोड़ देता है तो ये डिस्काउंट रिसीव। मैं किसको डिस्काउंट देते हैं तो ये डिस्काउंट अलाउ। कोई आदमी मेरे को छोड़ देता है तो ये डिस्काउंट रिसीव, और मैं किसको डिस्काउंट देते हैं तो ये डिस्काउंट अलाउ। सो चलिए सप्लायर, सप्लायर क्रेडिटर होता है, सो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। कोई सप्लायर का नाम नहीं है ना, था माने ये जो क्रेडिटर है वो क्रेडिटर का अंदर ही सप्लायर है। सो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 6000, ये पर्सनल अकाउंट, और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिटर को पैसा मिलता है, सप्लायर को पैसा मिलता है, जो पर्सनल अकाउंट में जिसको मिलता है हम उसको डेबिट करते हैं, इसलिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। पेमेंट कर देते हैं 5500 टू डिस्काउंट रिसीट, कितना 500, और लिख दीजिए कि बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर, बीइंग द अमाउंट received from creditor, क्रेडिटर से हमको पैसा मिलता है। सो ये एक जर्नल एंट्री आपका हो गया, राइट। सो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर, ये सप्लायर टू होम जिसको 6000 रुपया पेमेंट करना है वो 500 रुपया छोड़ देता है, उसको मैं बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। और जो पेमेंट करते हैं 5500, दिस इज द कैश गोइंग आउट फ्रॉम माई पॉकेट, दिस इज ए रियल अकाउंट, दिस इज ए डिस्काउंट रिसीव इज ए नॉमिनल अकाउंट, एंड क्रेडिटर इज ए पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। ओके, देखो 23 to 2020 paid bank overdraft with interest of rupees 600। देखो बैंक से जो मैं लोन लिए थे उसका नाम होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर मैं लोन लिए तब तो लोन मेरा लायबिलिटी है, इट इज ए पर्सनल अकाउंट, मैं पेमेंट कर देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट को, तब डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है? बैंक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए पर्सनल अकाउंट, सो बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी डेबिट है। पर बैंक में जब गए, बैंक बोलता है कि आपका लोन तो 500 था और 600 इंटरेस्ट हो गया, तो भाई इंटरेस्ट तो हमको भी पेमेंट करना है, तो अदर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करने से बैंक क्या बोलेगा ना, पहले इंटरेस्ट पेमेंट कीजिए उसका बाद प्रिंसिपल पेमेंट कीजिए। सो मैं इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिला के पेमेंट करेंगे, तो टोटल कितना पेमेंट करेंगे ना, 5000 और 600, 5600 आई हैव टू पे। 5000 is my bank overdraft and 600 is my interest. I will pay both the things, that is 5600. Okay, so let you come bank OD debit, overdraft debit 5000, interest account, interest is a nominal account, interest account debit 600 to cash account
ये नहीं बोला है कि चेक में पेमेंट करने के लिए, इसलिए मैं सोचते हैं कि कैश लेकर के बैंक का काउंटर में जमा देके हम लोग पेमेंट कर दिए। मेरा लोन था और लोन को चेक में भी पेमेंट कर सकते हैं, बट ये चेक का बारे में कुछ नहीं बोला है, तो अब हम सोचते हैं कि ये जो लोन था और इंटरेस्ट मिला के दोनों बैंक का काउंटर में पेमेंट कर दिए कैश से। सो कैश अकाउंट क्रेडिट बीइंग द बैंक ओडी with interest paid off. Okay, so this is the entry we have done. देख लीजिए थोड़ा। Let us come to another one entry. (25 to 2020). Wages of 1 month rupees 11,000 remain unpaid. Salary paid in advance rupees 8,500। इसमें दोनों चीजें, वेजेस ऑफ 1 मंथ रिमेन अनपेड। अनपेड का मतलब आदमी काम किया है कंपनी में, बट उसका पैसा कंपनी नहीं दिया। सो इट इज ए लाइबिलिटी। मान लीजिए कि आपका घर में कोई काम करता है और आप इसी मंथ का सैलरी नहीं दिए, नेक्स्ट मंथ में देंगे, तो इसी मंथ में ये सैलरी आपका एक्सपेंडिचर है और नेक्स्ट मंथ में आप पेमेंट करेंगे, तब क्या जर्नल एंट्री होगा ना, वेजेस इज एक्सपेंडिचर, इस मंथ का एक्सपेंडिचर, राइट, बट इट इज पेएबल इन द नेक्स्ट मंथ और लाइक दैट। सो वेजेस अकाउंट डेबिट, ये मेरा नॉमिनल अकाउंट, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, टू वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट 11,000 being wages remain unpaid. Okay, being wages remain unpaid, then we will come to another one. थोड़ा इधर लिख देते हैं, सैलरी अकाउंट, इधर लिखते हैं, देखिए सैलरी, ये एडवांस सैलरी है, एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट 8,500, और आप एडवांस नहीं बोल के इसको प्रीपेड भी बोल सकते हैं। हम लोग दूसरा क्लास में उसको डिस्कशन किए हैं। आप एडवांस सैलरी लिख सकते हैं या प्रीपेड सैलरी लिख सकते हैं, कोई भी एक लिखने से होगा। ये आपका एसेट है, राइट। ये जो आप वेजेस आउटस्टैंडिंग है, ये पर्सनल अकाउंट, दिस इज ए पर्सनल अकाउंट, वेजेस आउटस्टैंडिंग इज ए पर्सनल अकाउंट एंड वेजेस इज ए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंडिचर डेबिट होता है, पर्सनल अकाउंट में जो लेबर आपको दिया है, जो वेजेस, जो वर्कर आपको काम किया है, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग इज ए पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर।
जो आपको लेबर दिया है, जो आपको काम दिया है, काम किया है, उसका नाम पर ये आता है 11,000 क्रेडिट द गिवर। सिमिलरली ये एडवांस सैलरी या प्रीपेड, में प्रीपेड भी लिख देते हैं, आपको एक लिखना चाहिए, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट 8,500 टू सैलरी अकाउंट अगर सैलरी में घुसा है तो ये सैलरी अकाउंट होगा। अगर आप सैलरी में नहीं लिए, अलग से किए हैं, तो उसको सैलरी में मत कीजिए, आप कैश अकाउंट लिख दीजिए। आप अलग से एडवांस खुल के पेमेंट कर देते हैं तो आप कैश अकाउंट कर दीजिए। सैलरी करने से और रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगा। सो टू कैश अकाउंट लिखिए 8,500 बीइंग the advance salary, being the advance salary paid। so advance salary हम लोग पेमेंट करते हैं, राइट। अब देख लीजिए, goods purchased on credit from Mr. P rupees 30,000 trade discount 10%, trade discount 10%, paid immediately by check rupees 8,000। क्या होगा? गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, उधार से परचेस करते हैं, क्रेडिट नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, नाम दे देगा, तो तब हम लोग सोचेंगे वो भी क्रेडिट है। सो ट्रेड डिस्काउंट तो क्या करना है, तो मेरा 30,000 प्राइस है, ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस करना चाहिए। हम लोग कितना बार डिस्कशन किए हैं, 3,000 माइनस कर दीजिए, ये आएगा आपका 27,000, और 27,000 थे, 8,000 इमीडिएटली पे कर देते हैं, और जो नेक्स्ट वाला वो रहेगा आपका। तो क्या जल्द करेंगे, देखो परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट आपका 27,000 आएगा, तो आपका बैंक आएगा, क्योंकि चेक में पेमेंट करते हैं, बैंक अकाउंट क्रेडिट 8,000, तो किससे मिलता है, मिस्टर पी अकाउंट, कितना रेट, 27 माइनस 8 19,000। ओके, परचेस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, मिस्टर पी अकाउंट 19,000। ओके, सो परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक टू पी, राइट। तो क्या होगा,
ना परचेस को मैं डेबिट कर देंगे 30,000 से 3,000 माइनस, सो इट कम्स टू 27,000. So purchase is a nominal account and expenses debited. To bank is a personal account, right? A bank is a personal account and P is a personal account. P is a supplier, right? Here 19,000, 8,000 I immediately paid and 19,000 is payable to P. So being the goods purchased on credit, being the goods purchased on credit, next goods sold to Aditya rupees 20,000, received a bill of rupees 6,000 from him. देखो वे गुड्स सेल करते हैं किसको ना आदित्य को. सो आदित्य इज ए रिसीवर एंड आदित्य क्या इमीडिएटली हमको 6,000 रुपया का बिल दे दिया. तो नेक्स्ट 14,000 इज रिसीवेबल फ्रॉम आदित्य. मान लीजिए कि मैं आदित्य को 20,000 रुपया सेल किया, 6,000 रुपया वो हमको एक बिल दे दिया, बिल्स रिसीवेबल मेरे लिए ये, और 14,000 से अभी भी बाकी है, उससे मेरे को वो देगा बाद में, इसलिए दिस इज ए क्रेडिट सेल. सो क्रेडिट सेल कितना ना आदित्य अकाउंट डेबिट, पहले इस तरफ करेंगे, पूरा क्रेडिट करेंगे 20,000 टू सेल्स अकाउंट 20,000. इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग द गुड्स सोल्ड टू आदित्य. मैं 2 एंट्री करना चाहता हूं, दिस इज एग्जैक्टली करेक्ट. एंड उससे एक बिल मिला है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आदित्य अकाउंट 6,000. सो आदित्य अकाउंट डेबिटेड टू सेल, ये मेरा आदित्य पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, उसको गुड्स मिला है इसलिए वो रिसीवर. टू सेल, सेल्स इज ए नॉमिनल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल 6,000, राइट, टू आदित्य 6,000. इधर नरेशन क्या होगा ना, being the goods sold to Aditya on credit. इधर नरेशन क्या होगा, being the bills receivable received from Aditya. Okay, so this is the journal entry we passed. ठीक है, I think you understand this. Okay, so please you follow in the next class. We will again continue some more classes on journal entry so that your concept of entry will be clear. Thank you.